Welcome students. Okay, we are discussing in commerce. Okay, now today we will discuss today I already discussed what are the advantages. Okay, so see, now today we will discuss disadvantages of e-banking. देखो, ई बैंकिंग सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन डिसऑनर द बैंक एंड इट्स क्लाइंट हैव टू इन्वेस्ट मनी इन द ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी कि बैंक को भी और जो कस्टमर है उसको भी ई बैंकिंग के लिए क्या करना पड़ता है, ही इन्वेस्ट द मनी, ही हैव टू टेक द कंप्यूटर सिस्टम, द बैंक हैव टू टेक द do the expenditure on computer system, do the expenses on internet. Customer also have to invest the money in that, he have to purchase the laptop or iPhone, ठीक है, मतलब स्मार्टफोन और okay, so it means need a e-banking technology because training and technology is needed for the both. Okay, so bank also need the training and customer also need the training, because if they are the person are not trained, then there will be a transaction will not take the place. Okay, there are many mistakes in the transaction, so both have the bank also must have the knowledge of e-banking. Okay, technology, knowledge of the technology, how to do the e-banking, and customer also know the how to do the e-banking. Client may not be able to transact due to the defect on the virus in the technology. Many times there are many viruses which affect our e-banking transaction. They can steal our information from banking information by our computer or laptop, or you can say through our smartphone. कि there are many hackers who take the our personal information. Okay, there can be a mischief, and overnight or error on the part of bank or a client can very harmful. For example, rupees 5 lakh might be transaction because of error in mentioning zero. Okay, so these are the some disadvantages. Okay, if the it means these disadvantages, if the customer and bank are both are cautious, then we can use the good ई बैंकिंग सिस्टम. ओके, कस्टमर को भी और बैंक को भी थोड़ा सा क्या, बैंक को भी थोड़ा सेफ होकर चलना पड़ेगा. तो ई बैंकिंग इज़ अ वेरी गुड. ओके, नाउ सी द मेन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांसफर्स. मेन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग देखो कौन कौन से हैं मेन फॉर्म. सबसे पहले था EFTS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम मनी can be transferred from one account to another account. For example, a bank transfer wages and salary directly from company account to account of employee of the company. The services save both employer and employee from inconvenience and risk of handling the large amount of cash. EFT में क्या, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करना. ओके, ओके, जैसे कि अ बैंक ट्रांसफर वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी अकाउंट टू द कस्टमर अकाउंट. की नो नीड ऑफ वेड़ा कि कंपनी हैव टू पे द सैलरी एंड वेजेस टू द हिज एम्प्लॉय. तो फ्रॉम द कंपनी अकाउंट मनी विल मनी विल बी डेबिटेड एंड इट विल बी credited to the employee's account. Okay, another employee for a company. The services save both employer and employee for inconvenience and handling. द मेन टाइप ऑफ EFT आर एस फॉलो. डायरेक्ट क्रेडिट, कि डायरेक्ट क्रेडिट मतलब अपना जैसे कि क्या है, सैलरी डायरेक्टली क्रेडिट, पेंशन, डिविडेंड ऑन शेयर, इंटरेस्ट ऑन कमीशन, रॉयल्टी. ओके, कि बैंक जैसे कि सैलरी आपके जो कंपनी होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी का डायरेक्टली क्या करता है, अपने अकाउंट से डेबिट करके कस्टमर का अकाउंट क्या कर देता है, एम्प्लॉयज़ का अकाउंट क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है. किसी को पेंशन मिल रही है तो डायरेक्टली इट कम्स टू देयर बैंक अकाउंट. ओके, डिविडेंड ऑन शेयर्स, कि जो इफ़ यू हैव परचेज द शेयर्स, तो जो उनके ऊपर डिविडेंड आएगा वो कस्टमर के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कोई कस्टमर ने डिबेंचर्स परचेज किए हैं उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इट विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द डायरेक्ट डेबिट्स. कई बार बैंक क्या कहता है, लोन इंस्टॉलमेंट. ठीक है, लोन के लिए स्कूल फ़ी, जैसे आपके स्कूल में भी यू कैन गो टू द बैंक एंड सबमिट. इंश्योरेंस प्रीमियम, कि आप अपने ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो. इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिक बिल्स, वाटर बिल्स, क्लब मेंबरशिप, क्रेडिट कार्ड ड्यू आर डायरेक्टली डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑन द अकाउंट होल्डर्स. ओके, कि आप बैंक अकाउंट क्या कहते हो, होल्डर का अकाउंट क्या कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो और यू कैन डेबिट. ओके, मतलब इट मीन्स यू पे योर एक्सपेंसेस और डायरेक्ट डेबिट. ओके, डेबिट्स टू द अकाउंट. नाउ सी, electronic fund transfer offer the following advantages. Payment are made on the due dates.
There is no loss in transaction, no expenses are made or correspond, there is no mishandling of cash, transaction are effortless. उसके बाद है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम. यू ऑल ऑफ यू नो एटीएम. एटीएम इज अ ऑटोमेटिक मशीन. अ कस्टमर कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी विद द हेल्प ऑफ मशीन बाय इंसर्टिंग हिज और हर एटीएम कार्ड and typing his personal PIN number. ATM operate for all the 24 hours. Okay, ATM, you all of you know. Okay, you can withdraw or deposit the cash. Okay, you withdrawal machine you have seen, deposit machine you can see in the SBI bank. Okay, कि you can deposit the money. Okay, लेकिन but in deposit money 49,900 rupees, 999 rupees can be deposited. There is a much less costly and less time consuming. Okay, human teller bank ATM have been assuming the role of many banks. Okay, making the need of the visit to the bank, no need of visiting to the bank, you can go to the any ATM. Seeing the popularity of ATM, banks have now begun to install other devices such as cash depositing machine. Okay, cash deposit, in which you can deposit the loose cash, passbook. Okay, passbook entry, आपकी passbook की भी entry कर सकते हो. Okay, तो these all are the which ensure the branches. Okay, तो ATM you already know. Okay, now debit card. डेबिट कार्ड इज जैसे कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है, इट इज़ ऑल्सो डेबिट कार्ड. ओके, अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक. द कार्ड होल्डर मेक इमीडिएट पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज और सर्विसेज अवेलेबल विद द हेल्ड बाय अ डेबिट कार्ड अवेलेबल टू द सेलर. ओके, जैसे कि जो आपका एटीएम कार्ड होता है वो एटीएम कम डेबिट कार्ड होता है कि अगर आपने किसी का आपने परचेज वगैरह करनी है तो यू कैन स्वैप योर एटीएम कार्ड. ओके, व्हेन द कस्टमर प्रेजेंट हिज डेबिट कार्ड terminally automatically transfer money from the buyer account to the seller account. Debit card are also used for withdrawal of money from ATM. Okay, ये debit card is a ATM also. Same ATM is a debit card. ATM क्या है, एक डेबिट कार्ड है कि आप विड्रॉल भी कर सकते हो मनी और अगर आपने कोई परचेज वगैरह करना है. बट ATM में क्या है, डेबिट कार्ड का कार्ड और ATM में क्या होता है कि यू आर हैविंग द बैलेंस इन योर अकाउंट, तभी आप क्या कर सकते हो, मनी विड्रॉल कर सकते हो और अपना किसी को क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो. लेकिन क्रेडिट कार्ड, द मेन फीचर्स ऑफ डेबिट कार्ड आर एज फॉलोज. ओके, तो उसके फीचर्स पढ़ लेना. द कार्ड होल्डर हैव टू डिपॉजिट मनी विद द इशूअर ऑफ डेबिट कार्ड. द कार्ड कंटेन नेम, एड्रेस, फोन. ओके, यू कैन रीड इट. नाउ सी क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड, एनीबडी हैविंग गुड रेपुटेशन कैन ऑब्टेन क्रेडिट कार्ड फ्रॉम द बैंक. ओके, क्रेडिट कार्ड क्या होता है बच्चे, डेबिट कार्ड में तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए बैंक में, तभी आपको क्या मिलेगा, एटीएम और डेबिट कार्ड. लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसा नहीं होता. क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है, ओके, तो भी आप क्या कर सकते हो, अपने पेमेंट कर सकते हो, अपने परचेज का, शॉपिंग वगैरह का पेमेंट कर सकते हो. ओके, तो मतलब इट मीन्स क्रेडिट कार्ड इज़ गिवन बाय द बैंक. इट गिव ऑन द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन. ओके, ही सेट द लिमिट. बैंक क्या करता है, उसके लिए लिमिट सेट कर लेता है. बैंक क्या करता है, उसके लिए लिमिट. ओके, anybody having the good reputation can obtain the credit card from a bank. A person need not have money in the bank can get credit card. Rather it इज़ अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. एक किस्म से क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है, अगर आपने किसी ने परचेज़ वगैरह कर दिए, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट, और आपको क्या करना, बैंक को पे करना होगा. The name, photos, signature of customer, the name of issuing bank and the date of validity are encrypted on the credit card. The card holder can buy goods and services with the help of credit card. He keeps and depositing the money used as per the agreement with the bank. Okay, अब बैंक सेट द लिमिट. बैंक क्या करता है, उनके लिए एक लिमिट सेट करता है कि 5 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़. तो इट मीन्स अगर आपके अकाउंट में अगर यू हैव सेट द लिमिट ऑफ रुपीज़ 2 लाख रुपीज़, तो इट मीन्स इफ़ यू आर नॉट हैविंग इन योर अकाउंट 2 लाख रुपीज़, बट बैंक गिव यू द फैसिलिटी दैट यू कैन यूज़ 2 लाख रुपीज़ टू पेइंग द योर शॉपिंग बिल्स, या फिर किसी अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए. आप अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ नहीं भी हैं, तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, क्रेडिट लिमिट है आपकी. ओके, द मेन फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड आर एज फॉलोज. The credit card holder must enjoy good reputation. Okay, there is no need to deposit advance money with the issuer of the card. However, she may ask to open an account. Okay, the card contains personal details of the card holder and the name and address of the bank. Okay, the credit card allows credit facility. It is a credit, मतलब एक किस्म से क्या है, क्रेडिट मतलब
हैव टू पे फ्यूचर, यू हैव टू पे मनी टू द बैंक इन द फ्यूचर। जितने का आपने क्रेडिट लिया है आपने फ्यूचर में क्या करना है, पे करना है। ओके, अब बैंक ने क्या कर रखा है, एक लिमिट बना रखी है कि आपको 2 लाख तक का क्रेडिट देगा, 5 लाख तक का क्या देगा, क्रेडिट देगा। ओके, तो क्रेडिट कार्ड अलाउज द क्रेडिट फैसिलिटी टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर। द कार्ड होल्डर मेक पेमेंट आफ्टर यूजिंग द कार्ड। द कार्ड होल्डर पे सम चार्जेस फॉर द क्रेडिट कार्ड। इसके लिए उसको थोड़ा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सम इनसे ओके, तो दीज आर द, यू कैन रीड द क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आता है टेली बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग। अंडर दिस सिस्टम द पर्सनल कंप्यूटर और कस्टमर लिंक्ड बाय telephone to the bank computer, the customer can get information about balances in his account and latest transaction on the telephone. The facilities available around the clock. टेली बैंकिंग मीन्स कि यू कैन सी कि आपको मैसेज आते रहते हैं बैंक से कि अगर आप विड्रॉल करोगे, जो भी आपके अकाउंट से जो भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी अगर आपके अकाउंट से मनी का ट्रांसफ़र हुआ है, मनी आई है गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को देते रहते हैं बाय थ्रू द मैसेजेस। ओके, बैंक से मैसेज भेजे जाते हैं आपके फ़ोन में, इसको बोलते हैं टेली बैंकिंग। गॉट इट। कोर बैंकिंग सिस्टम मीन्स की द ब्रांच हु हैविंग द इंटरनेट कनेक्शन। ओके, अंडर दिस सिस्टम कस्टमर become the customer of bank with rather than the customer of branch by opening the bank account on one branch which is has CBS facility। core banking system कि इससे आप किसी ब्रांच के कस्टमर नहीं हो, now you become the customer of the bank anywhere। okay, the customer can operate the same account in all the CBS branches of the same bank anywhere across the country। the bank give unique ID to a CBS customer which gives him privilege for opening an account with any of the CBS branches without any formalities। CBS are also known as centralized banking solution, core banking, or you can say centralized banking solution, core banking solution, centralized banking solution कि it means you now you become the customer of bank not a customer of branch। कस्टमर ऑफ ब्रांच की मतलब आपने श्रीनगर में SBI में अपने अकाउंट खोला है तो इट मीन्स यू आर ओनली द कस्टमर ऑफ SBI श्रीनगर, बट इफ इट दैट बैंक इज अ CBS बैंक, centralized banking solution, now you become the customer of SBI। it means you can go to the any bank, any SBI बैंक, आप उसके आप क्या बन गए, कस्टमर बन गए हो, बिकॉज यू आर हैविंग द क्या कहते हैं CBS account in their CBS bank centralized banking solution। now you are having the unique ID और वो आपका किसी भी SBI बैंक में आपको यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी SBI बैंक में अपने ट्रांजेक्शन से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन द अकाउंट CBS ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। आप किसी भी ब्रांच में क्या करते हो, CBS ब्रांच में क्या करते हो, कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम एनी CBS ब्रांच, आप कहीं से भी कैश विड्रॉल कर सकते हो। ओके, अगर आपका अकाउंट CBS ब्रांच में। द अपडेटिंग द पासबुक एट ऑल CBS ब्रांचेस, आप किसी भी बैंक में जाके अपनी पासबुक को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ओके, तो यू कैन go to the any bank and you can update your passbook। okay, the facility of centralized cooperation limit is all the CBS branches। the CBS is speedily banking anywhere and anytime। तो all of you read the what I told you। इसके बाद के 2 बैंक ओवरड्राफ्ट है, you can read। okay students, thank you।